Good morning, friends. Welcome back. Uh, it was a long session, but you might be wondering, sir, the last doubt session was almost 7 to 8 or maybe 10 days back. It almost took you 10 sessions, but I was doing the same thing continuously. Okay, because this is something which it's only after practicing that you will start understanding. If at all in between I'll be keeping a doubt session, तो शायद it won't make that much sense. And so I needed you to grind yourself through that entire process. Once that process is almost done, उसके बाद ये doubt session रखा गया है ताकि most of the students who are listening to me, they'll be almost super duper clear. And if at all there are few who are not clear, they'll be sending me doubts, and I'll be clearing it. Or it's only after this that I'll be going to next level. So that was the entire thought process. Now कुछ doubts है, ठीक है, numbers हमारे कम हो रहे, so congratulations, आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है. But make sure that your involvement is perfect. Make sure that these doubt sessions are basically gold mines, to be very honest, ठीक है. आपको डाउट है नहीं है, मगर फिर भी ये डाउट सेशन देखना, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें पता चलती है. पहला, कैसे सोचना है. दूसरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैसे नहीं सोचना है. बिकॉज द डाउट्स दैट आई गेट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और आई से मेनी ऑफ द टाइम्स, इतने गलत जा रहे होते हैं कि एटलीस्ट वो गलत जितने जा रहे हैं वो सुनकर आपको पता चलेगा कि अच्छा ये तो नहीं करना है. तो वो क्या नहीं ही करना है वो समझने के लिए भी ये डाउट सेशन देखना, ठीक है. सो नॉट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द डाउट सेशन. बिफोर आई जंप टू द डाउट सेशन, लिस्ट ऑफ डाउट्स, मैं पहले एक बेसिक चीज बना देता हूँ और बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर कर देता हूँ. एंड दैट बेसिक थिंग इज नथिंग बट आवर चार्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ accounts. I will divide this into two parts, one to my left, one to my right. To my left, I've got all those accounts which are somewhere affecting the business, and by nature they are all personal accounts. Who can be personal account? तो जिनमें तीन characteristics है. Who can sue others, who can be sued by others, and who can do activities in their own name. Abhi bhi I am still getting people who are asking me some funny questions. Like day before yesterday only I got a message. किसी ने पूछा, sir, I have totally understood कि sir cash is personal, but I am not getting how it is an asset. Beta, you have not at all understood. Can cash do economic activities in its own name? Can cash sue others? Can cash be sued by others? For all, answer is no. So cash is not a personal account. पहले तो आपकी सोच ही गलत चली गई. तो अगर पर्सनल नहीं है तो इम्पर्सनल है. अब इम्पर्सनल में कैश क्या है, रियल है या नॉमिनल है. तो यू हैव टू एक्वायर कैश. देखो, ऐसा नहीं है कि सरकार ने ऐसे एक बड़ा सा ग्राउंड ले लिया, वहां पर खूब सारा पैसा रख दिया और बोला जिसको चाहिए उतना ले लो. यू डोंट गेट कैश लाइक दैट. यू हैव टू ओन इट. हाउ डू यू ओन इट? तो बाय वर्किंग. लाइक मुझे अगर पैसा चाहिए तो मुझे काम करना, मैं आपको सर्विस दूंगा, तब जाके आई विल ओन माई कैश. इट्स अ प्रॉपर्टी. और जैसे मैं प्रॉपर्टी कहता हूं तो वो बन जाता है रियल. और रियल में आई डोंट डील इन कैश ना. कैश किसी को देना, कैश किसी से लेना, ये मेरा काम नहीं है ना. तो ये बन जाता है समथिंग इन विच आई डोंट डील इन, एंड दैट्स वेयर इट बिकम्स माई असेट. जिसने भी पूछा था, होपफुली आपका डाउट क्लियर है. सुनना, ये अच्छी तरह से सुनना, समझना कि आपकी समझ कहाँ गलत जा रही है. सो कमिंग बैक टू द चार्ट, पर्सनल, इट हैज टू डू इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन इट्स ओन नेम. इट कैन sue others, इट कैन बी sued by others. क्या क्या आता है? तो रिमेंबर एक और चीज, कोई भी चीज को पर्सनल कहने से पहले मेक श्योर दैट इट इज फॉलोइंग इन एनी ऑफ दिस कैटेगरी. ईदर इट हैज टू बी individual or it has to be a firm
or it has to be a company or a cooperative or a bank or AJP or BOI, and the new one, that is representative personal accounts. Your prepaids and your outstandings and your pre-receipts, we have worked a lot on that, we have talked a lot on that, should not be a problem. किसी ने recently मुझे ये सवाल पूछा कि सर when will a revenue receipt become a current liability? जो ये अगर आप ये सुन रहे हो, जिसने भी ये सवाल पूछा, तो I won't answer you. Why I won't answer you? Because if you go back to the lecture of revenue receipt, in detail I talked about when a revenue receipt will become a current liability. In detail. But me being me, थोड़ा hint दे देता हूँ अगर आप सुन रहे हो तो. If it is generated in current year and activity is also in current year, then it is closed at the end of financial year to profit and loss account. But if a receipt is generated in current year but activity is in next year, यानी मैंने पैसा ले लिया है, आपको सर्विस देना बाकी है, तब जाके वो रेवेन्यू रिसीट चेंजेस इट्स फॉर्म एंड बिकम्स करंट लायबिलिटी. मैंने एग्जाम्पल भी बड़े सारे दिए थे, वो साइंस के क्लास वालों के दिए थे कि एक साथ 2 साल की फीस ले लेते हैं. तो ये पूरा सेशन करने के बाद अगर आप ऐसे सवाल पूछोगे तो एक्सेप्टेबल नहीं रहेंगे. Ethically it is not acceptable. I am there to answer you, boss. See, you are paying me, so I am supposed to answer you. But आपका और मेरा दोनों का समय बिगड़ रहा है. समझिए बात. जितने नए सवाल पूछोगे उतने नए जवाब मिलेंगे. अगर पुराने ही सवाल पूछते रहोगे, देखो समय तो हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है. मेरे पास मेरे 24 घंटे, आपके पास आपके 24 घंटे. अब 24 घंटे में आप एक ही एक चीज रिपीट करते रहोगे तो नई चीज आप कर ही नहीं पाओगे. आपका भी नुकसान, मेरा भी नुकसान. चलो मेरा तो कोई नुकसान नहीं है. आप पुराना पूछोगे तो भी मेरा फीस जो है वही रहने वाला है, नया पूछोगे तो भी मेरा फीस जो है वही रहने वाला है. मेरा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपका हो रहा है. यू आर नॉट ग्रोइंग. व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट वॉचिंग थिंग्स प्रॉपरली. वॉच थिंग्स प्रॉपरली. I don't think, and I'm proud of it, I'm absolutely proud of it, I don't think there is anyone on entire social media, on entire platform, digital platform, who is trying to make things as easy as we are trying. इतना एक रोल प्ले करके, इतना समझा के अगर कोई आपको बता रहा है तो वो सिर्फ हम हैं. अगर हम इतने एफर्ट डाल रहे हैं तो आप भी उतने एफर्ट डालिए. मेक श्योर दैट यू आर नॉट कमिंग अप विद सच डाउट्स. होप थिंग्स आर क्लियर. सो दैट्स पर्सनल फॉर यू. पर्सनल आपकी बुक में कब आता है? तो ओनली एंड ओनली व्हेन देयर इज अ क्रेडिट transaction. Credit transaction, hopefully everyone is clear. Settlement is postponed from the end of any one side. या तो सामने वाला पोस्टपोन करेगा या तो हम करेंगे, तब वो क्रेडिट बनता है. अगर सेटलमेंट इमीडिएटली हो जाता है तो वो कैश बन जाता है. अगर कैश आएगा तो कोई पर्सन आएगा ही नहीं. ना ही मेरा नाम आपकी बुक में आएगा, ना ही आपका नाम मेरी बुक में आएगा. तो पर्सन इसीलिए क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन. और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में या तो उस पर्सन से मुझे बेनिफिट लेना बाकी है या तो उसको बेनिफिट देना बाकी है. अगर लेना बाकी है तो उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे एज असेट. और अगर बेनिफिट देना बाकी है तो उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे एज लायबिलिटी. सिंपल. सो पर्सनल अकाउंट कैन नेवर बी एनीथिंग अदर देन असेट और लायबिलिटी. इतना पूरी जिंदगी याद रखना, पूरी जिंदगी. इट्स अ थंब रूल. इट्स अ थंब रूल. इट विल नेवर चेंज. नेवर एवर चेंज.
पर्सनल अकाउंट है तो सोचो उससे बेनिफिट लेना बाकी है या उसको बेनिफिट देना बाकी है. अगर लेना बाकी है तो असेट, अगर देना बाकी है तो लायबिलिटी. सिंपल. Hope things are clear. That's personal. On the other side, I have got impersonal account. Impersonal accounts are accounts which cannot do economic activities in their own name, cannot sue others, cannot be sued by others. ये impersonal account हो गए. In impersonal, there are two categories. One is real account, and one is nominal account. Now, what is real account? Real account is all about rights and properties. What is nominal account? Nominal account is all about payments and receipts. But which payment, which receipts? Remember, it's revenue payments and revenue receipt. अगर कैपिटल है, पेमेंट या रिसीट, तो वो यहाँ पर क्वालिफाई होगा ही नहीं. टू क्वालिफाई एज नॉमिनल इट हैज टू बी अ रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंस. Within real rights and properties, there are two possibilities. Either you deal in this rights and properties, or you don't deal in such rights and properties. If you deal in those rights and properties, then they are termed as goods. If you don't deal in such rights and properties, then they are termed as assets. किसी ने पूछा सर goods is what I deal in. Purchase of goods is my revenue expense. Sale of goods is my revenue receipt. So why not nominal? Why real? यहां तक सवाल सही था जिसने भी पूछा, मगर फिर दूसरा सवाल गलत हो गया. Why not nominal? Why real? Because I have given a specific space for specifically goods in real. इसलिए फिर यहां पर ये जनरल है, यहां पर सारे रेवेन्यू एक्सपेंस, सारे रेवेन्यू रिसीट, सारे रेवेन्यू लॉस, सारे रेवेन्यू गेन्स आते हैं. सारे सैलरी भी यहां पर आएगा, वेजेस भी यहां पर आएगा, एडवर्टीजमेंट भी यहां पर आएगा. तो ये जनरल हेड है, ये उसको एक स्पेसिफिक हेड दिया. अब क्योंकि उसको स्पेसिफिक हेड दिया, इसलिए हम परचेज, दो इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंस, वी पुट इट एज, वी आइडेंटिफाई इट एज रियल. Sales, though it's a revenue receipt, we don't identify it as nominal, we identify it as real. ये आपके पहले सवाल का जवाब. दूसरे सवाल का जवाब, सर goods real कैसे हुए? Because it is neither right nor a property. Now that's where your question went wrong. Is goods not your property? It is your property, dear. Property is something which you need to acquire or which आपको inherence में मिलता है. That's a property. ठीक है, जैसे ये डस्टर मेरा प्रॉपर्टी है, मगर इसको मेरी प्रॉपर्टी बनाने के लिए मुझे इसको खरीदना पड़ा. ये पेन मेरी प्रॉपर्टी है, मगर ये प्रॉपर्टी, इसको प्रॉपर्टी बनाने के लिए मुझे इसको खरीदना पड़ा. आई हैव टू एक्वायर इट. ये बोर्ड मेरी प्रॉपर्टी है, मगर इसको प्रॉपर्टी बनाने के लिए मुझे इसको खरीदना पड़ता है, एक्वायर करना पड़ता है. ये जो कैमरा है जिससे मैं ये शूट कर रहा हूँ, ये फोन जो है जिससे मैं शूट कर रहा हूं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मगर इसको प्रॉपर्टी बनाने के लिए मुझे इसको एक्वायर करना पड़ता है. तो ऑन द सेम लाइन, इफ एट ऑल आई एम डीलिंग, से फॉर एग्जांपल आई एम डीलिंग इन पेन्स, तो आई हैव टू एक्वायर देम फर्स्ट एंड देन ओनली आई कैन सेल इट. विदाउट एक्वायरिंग आई कैन नॉट सेल इट, एंड व्हाटएवर यू एक्वायर बिकम्स योर प्रॉपर्टी, एंड हेंस गुड्स आर योर प्रॉपर्टी. Hope you got your answer. Within this, everything which is relating to goods, everything, I repeat, everything which is relating to goods. You got purchase, you got sales, you got purchase return, you got sales
return. Everything is real. As far as the asset is concerned, you have tangible and intangible. You can identify them as current and non-current, or real and fictitious. Hope that is clear. Coming to nominal accounts are further divided into or identified into 4 categories. 1, 2, 3, 4. 1 is expense account, loss account, incomes account, and gain account. Which expense? Revenue expense. Which loss? Revenue loss. Which income? Revenue income. Which gain? Revenue gain. इसने ये सवाल मुझे पूछा, सर are receipts and incomes same? Now say if you go with the meaning behind the word, yes, receipt में भी पैसा अंदर आता है, income में भी पैसा आता है, तो अगर pure meaning पकड़ के चलो, yes they are same. But how do we use it in day-to-day life? So income is something which we use for only and only revenue receipt. But receipt is what we use for everything, capital receipt and revenue receipt. Like अगर मैंने loan borrow किया तो it's a receipt, but it's not my income. मैंने rent लिया, receive किया तो yes it's my receipt, but it's also my income. Hope that is clear. There are textbooks which use receipt and incomes both as synonyms. Yes, दोनों का dictionary meaning same होगा. मगर the way we use it in business, practical life में जैसे use करते हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. Income is used only and only for revenue receipts. लोन बोरो करोगे और आपको अगर कोई बोलता है आज मेरा 5 करोड़ का इनकम हुआ, आप ऐसा कभी सुनोगे ही नहीं, कभी नहीं सुनोगे. हाँ, जैसे आपके फादर जॉब करके आते हैं तो कई बार आप पापा आपकी इनकम कितनी, या फिर कहीं पर आपको स्कूल में कोई फॉर्म भरना है तो उसमें पूछते हैं कि व्हाट इज योर पेरेंट्स इनकम, तो यू ओनली रिकॉर्ड व्हाट योर फादर इज अर्निंग एवरी मंथ और मे बी सम टोटल ऑफ दैट ईयरली बेसिस, बट यू नेवर मेंशन इन दैट कि अभी पापा ने 5 करोड़ का लोन लिया है ना तो वो भी इनकम में डाल देता हूं. हैव यू एवर डन दैट? यू विल नेवर डू दैट. सो रिसीट इज अ वाइडर टर्म. इट इंक्लूड्स कैपिटल एंड रेवेन्यू बोथ. Income is a smaller term. It only includes revenue receipt in our day-to-day life. Hope you are convinced. Expense further divided into 2. But remember, only revenue expense, that is direct and indirect. किसी ने ये भी पूछा कि सर गुड्स इज व्हाट यू डील इन, तो एससीपीएल के लिए गुड्स क्या होंगे? मैंने पहले ही बता दिया है बेटा, एससीपीएल डजंट डील इन गुड्स, वी डील इन सर्विस. तो हमारे लिए ये हिस्सा खाली जाता है. होप दैट इज क्लियर. देखिए ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूं यानी आई हैव टू डील विद एवरी पर्सन, आई हैव टू डील विद ऑल काइंड ऑफ एसेट्स, I have to deal with goods, I have to deal with direct expense, indirect expense. Loss होना ही चाहिए, इनकम होनी चाहिए, गेन होना ही चाहिए. जहां जितना दिख रहा है सब कुछ होना चाहिए. अगर बिजनेस कर रहा हूं तो ये कंडीशन है, ऐसा कुछ नहीं होता है. वो सिंपल. In my business there is no goods and because I don't deal in anything, no direct expense. ये दोनों चीजें मेरे बिजनेस में नहीं होती. Hope things are clear. Now coming to the point, there were few who asked me this question. इच्छा तो हुई कि ये डस्टर सीधा मुंह पर मारूं, मगर इंटेंजिबल हुआ अभी.
I can feel you वो, but I cannot touch you. And so आप बच गए. किसी ने मुझे सवाल पूछा कि सर टाइप, सब टाइप क्या होता है? See, it is for people like you that in every PDF of mine, my PDF starts with this chart. And just to make things interesting, if you have observed the pattern, I made sure, I asked one people who are making PDF कि बेटा कलर अलग अलग रखना ताकि बच्चों को कोई नई फ्लेवर दिखे. आपको क्या लग रहा था? क्योंकि PDF बन रहा है तो फिजिकल पेपर नहीं है, तो पेज का कोई खर्चा नहीं है, तो ज़्यादा पेजेस लगे इसलिए वो पहला पेज ये चार्ट था? नहीं, उसलिए नहीं था. वो इसलिए था तो ताकि आप रोज ये चार्ट देखो, आप रोज उसका टाइप, सब टाइप, सब टाइप समझो. एनीवेज, आपका काम है कि आप ना समझो, मेरा काम है कि मैं समझाऊं. चलो समझते हैं. ऑन द बोर्ड, आपके पास जैसे ही कोई अकाउंट आता है तो सबसे पहले उसका टाइप जाना जाता है कि भैया टाइप में ये पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है. सो ऑल माय रेक्टेंगल्स आर टाइप्स. वंस यू आइडेंटिफाई कि ओके चलो पर्सनल है, तो एज आई टोल्ड यू, या तो बेनिफिट लेना बाकी है या तो देना बाकी है. पर्सनल कैन नॉट बी एक्सपेंस, इनकम, लॉस और गेन. पर्सनल कैन नॉट बी गुड्स. पर्सनल या तो एसेट है या तो लायबिलिटी है. तो पर्सनल है तो क्या है तो क्या है, तो वो क्या है का जो जवाब आता है ना, वो उसका सब टाइप होता है. अगर रियल है तो रियल में तो असेट भी होता है, गुड्स भी होता है. तो अगर रियल है तो क्या है, वो जो तो क्या है वो उसका सब टाइप बनता है. और अगर नॉमिनल है तो क्या है, तो क्या है वो उसका सब टाइप बनता है. अब सब टाइप मिल गया तो अगर असेट है तो या तो करंट है या तो नॉन करंट है. लायबिलिटी है तो या तो करंट है या तो नॉन करंट है. तो अगर असेट है तो भैया 1 साल से ज्यादा चलने वाला है या 1 साल के अंदर खत्म होगा, ये. और अगर लायबिलिटी है तो बाय नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे बैक करना है या इसी फाइनेंशियल में पे बैक करना है. ये आपका हुआ सब टाइप. क्योंकि ये सब टाइप था तो ये हुआ सब टाइप. अगर असेट है तो असेट में यहां पर भैया टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, करंट है, नॉन करंट है, रियल है, फिक्टिशियस है, चॉइस आपकी है. मतलब गुड्स के नीचे ये सब टाइप नहीं है, ये तो खुद अकाउंट्स है. परचेज अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब टाइप्स नहीं है. नॉमिनल में एक्सपेंस है अगर, तो वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ये उसका ये टाइप, ये सब टाइप, ये सब टाइप. बट सेम सब टाइप इज नॉट इन लॉस, इनकम्स और गेन्स. जिसने भी ये सवाल पूछा था, थोड़ा अकेले में ऐसे शर्मा लेना और फिर समझ लेना. शर्मा इसलिए लेना क्योंकि शर्म आनी चाहिए. इतना मैं हर रोज आके बोलता हूँ. इनफैक्ट येस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू अ गर्ल, हेतवी करके, एंड शी वाज लाइक, सर आप इतनी बार चीजें रिपीट करते हो कि सर ऐसे अकाउंट दिखता है ना तो पूरी डेफिनेशन यहाँ पर सामने ऐसे घूमना शुरू हो जाती है. तो थोड़े आंसू आ गए मेरे आंखों में. मैंने बोला हेतवी ऐसा नहीं है बेटा, तेरे जैसे सारे स्टूडेंट्स मेरे पास नहीं है. आई स्टिल गेट स्टूडेंट्स हु आर आस्किंग मी डाउट्स व्हिच सेज that sir cash I know it is personal but I can't understand how it is asset.
I still get students who say कि सर टाइप सब टाइप और सब टाइप क्या होता है, प्लीज एक बार और समझा दो. I still get students who say कि सर रेवेन्यू रिसीट करंट लायबिलिटी कब बनती है. I still have such students who ask me this question even after so many repetitions. प्लीज पढ़ना शुरू करिए, प्लीज हाथ जोड़कर बोल रहा हूं. आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ न्यू पैटर्न ऑफ लर्निंग, जहां पर रटना नहीं है, जहां पर हर चीज का एक लॉजिक दिया जाता है, हर चीज को एकदम शिद्दत से समझाया जाता है, डिटेल में समझाया जाता है, मेहनत करके समझाया जाता है. प्लीज डोंट ड्रेन इट आउट, डोंट वॉश इट आउट. प्लीज you have all videos to your access. Just go to past, check out the videos. I'll say थोड़ा अपने आप को refresh करिए and make sure that your concepts are absolutely clear, because we have worked a lot on all these concepts, so we deserve to be better than others. Please help me out. Now with that, let's start with today's session. The first one says, in goods subhead of real account, what will be returned by SCPL since it provides service of education and does not deal in any kinds of goods. Hopefully you got your answer. जिसने भी ये सवाल पूछा था, we don't have this, and because we don't have this, we also don't have this direct expense. हमारे सारे expenses indirect होंगे because we don't manufacture anything. Hope things are clear. Real account contains rights and properties. Then how can purchase and sales be recorded as goods? Subhead real account, as they are neither rights nor properties, the revenue expense and revenue receipts respectively. Why it is so, and why they are not recorded under nominal account, which itself contains revenue expense and revenue receipt. Hopefully you got the answer during the making of this chart. तो अगर आपने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया और सीधा आपको लगा कि ये वो नेटफ्लिक्स का कोई सीरीज है जिसमें दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन और यहाँ पर एक ऑप्शन था स्किप इंट्रो, और आपने वो स्किप इंट्रो करके सीधा क्वेश्चन 1 से शुरू किया है, तो इसका जवाब मैंने इंट्रो में दे दिया था. तो थोड़ा रिवाइंड कर लेना, ठीक है, और आपको जवाब मिल जाएगा जिसने भी पूछा था. अ पर्सन हैविंग स्टेशनरी शॉप, दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन. जिसने भी पूछा, अ पर्सन हैविंग स्टेशनरी शॉप विल आल्सो यूज स्टेशनरी for his administrative work and also stationery for his goods since he deals in it. Then while classifying accounts, how to distinguish which stationery is asset and which stationery is goods for the stationery shop owner. आपने एंड में सब बिगाड़ दिया, शुरू बहुत बढ़िया किया. एंड में जो आपने सवाल पूछा ना, which stationery is asset, stationery that we use is not our asset, it's a revenue expense because it gets exhausted within 1 financial year. असेट बनने के लिए तो भैया उसको 1 साल से ज्यादा रहना पड़ता है. ये जो पेन है 2 महीने में खत्म होती है. ये जो डस्टर है, इफ यू कैन सी ऑलरेडी ये खत्म होना शुरू हो गया है. होप यू कैन अंडरस्टैंड. ये बॉल पेन है, वो भी 1-2 महीने, 4 महीने, 5 महीने में खत्म हो जाती है. आपका कैलकुलेटर कितनी बार पछाड़ के तोड़ देते हो आप. None of the stationery is going to stay for more than 1 financial year. So point is simple. If I buy stationery, hope that is clear, and I use it for my admin purpose, it becomes my revenue expense, indirect expense, nothing to do with production. But same stationery when I use for selling and buying on my day-to-day basis, then that becomes my business. तो वो stationery बन जाता है मेरा goods, और उसे मैं रियल और गुड्स की तरह आइडेंटिफाई करूंगा. अब लोग सर पता कैसे चलेगा, पता क्यों नहीं चलेगा. अगर मैं 100 पेन लेकर आता हूं, उसमें से 2 पेन, उससे ज्यादा तो चाहिए नहीं, 2 पेन मैंने साइड में कर ली एंड आई एम यूजिंग फॉर माय एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, तो वो 2 पेन विल बी माय रेवेन्यू एक्सपेंस, 98 पेन्स विल बी रियल एंड गुड्स. होप थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन. अ गुड क्वेश्चन, सिर्फ यू एंडेड अप बैडली. इज insolvency same as bankruptcy? Insolvency is a situation. Once you come into that situation, आपको आपके जो liabilities है, जिनको आपको पैसा देना बाकी, वो आप पर केस करेंगे. आप पर केस होगा, कोर्ट में जाओगे, कोर्ट will find out whether you are actually insolvent or not, and if at all court finds out that you are insolvent,
court will declare you as bankrupt. Hope things are clear, everyone. So that's a legal term, bankruptcy. Insolvency is a accounting term. That's the only difference. How are capital receipt oblique expense account classified into types of accounts? For example, furniture expense. I know furniture is an asset, so it is a real account. But what about furniture expense? There is nothing like furniture expense. It is furniture. Furniture, when you acquire, it becomes your asset. Nice question. How do you identify capital receipt and capital revenue receipt and revenue expense? यहाँ पर है. तो where is your capital receipt and capital expense? ध्यान से देखना. If you can remember, what was capital receipt? Capital receipts are those receipts which are not day to day. Number one. They are rather they are not day to day, they are not recurring, and they are not part of your routine activity, and they result out of basically two activities. One is borrowing and second is selling of your asset, exchange of asset. Receipt चार चीजों से बनती है, if you can remember. On exchange of service, on exchange of goods, now that's revenue receipt. On exchange of asset, now that's capital receipt. And on borrowing, when you borrow, you have to pay back. What you pay back is your liability. What you have to pay back is your liability. And हमारे पूरे चार्ट में if you can see liability कहाँ पर है, तो personal में, because liability has to be personal. मैंने बताया था ये, क्योंकि अगर liability impersonal हुआ, liability यानी वो जिसको मुझे पे बैक करना है, जिसको मुझे पे बैक करना है, अगर मैं उसको पे बैक ना करूं और अगर वो मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता, तो मैं उसको पे बैक कभी करूंगा ही नहीं. इसलिए liability हमेशा वो होगा जिसको ना पे बैक करने पर वो मुझे पूरा का पूरा उखाड़ सकता है, और वो क्षमता, उखाड़ने की क्षमता, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट, बिकॉज दे कैन स्यू अदर्स. सो वेयर आर माय कैपिटल रिसीट? तो योर ऑल कैपिटल रिसीट्स आर पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट. उन्होंने आपको पैसा दिया और आपको उन्हें पे बैक करना बाकी है. Where are my capital expenses? So if you can understand, over here are your capital expenses. Maybe they are tangible, intangible, or current, non-current. And where are my deferred revenue expenses? So here are your deferred revenue expenses. ये revenue expense. मगर if you can remember, ये दोनों में पैसा बाहर जाता है, मगर यहां पर सर्विस अंदर आती है, यहां पर कुछ अंदर नहीं आता है. सो वन वे ट्रैफिक इज अ लॉस, टू वे ट्रैफिक इज एक्सपेंस. यहां पर पैसा अंदर आता है, रिसीट है तो, मगर सामने सर्विस देनी पड़ती है. यहां पर कुछ दिए बिना मिलता है. तो इफ यू कैन अंडरस्टैंड, ऑन एक्सचेंज ऑफ सर्विस, व्हेन यू रिसीव मनी, इट्स योर इनकम. ऑन एक्सचेंज ऑफ सर्विस, इफ यू पे, इट्स योर एक्सपेंस. तो व्हाट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स? तो रेवेन्यू एक्सपेंस ऑन एक्सचेंज ऑफ गुड्स वो यहां पर है. एंड रेवेन्यू रिसीट ऑन एक्सचेंज ऑफ सर्विस, सॉरी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, वो यहां पर आ जाती है. तो नाउ इफ यू कैन अंडरस्टैंड, that's your revenue expense, revenue loss on service, revenue expense, revenue receipt on goods. That's your capital expense, that's your deferred revenue expense, and that's your capital receipt. So all your receipt, all your expense, all their classifications are there on this board. I could have shown it on day one, but day one, if at all I would have shown it, it would have been a bit difficult for you to understand even the basic chart. इसलिए अब क्योंकि वो एक दो जन जिसने पूछा कि सर टाइप, सब टाइप, सब टाइप क्या है, उनको छोड़कर बाकी सब क्योंकि ये चार्ट से ऑलमोस्ट इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, इसलिए आई एम
using this opportunity to make you understand that business is all about receipts and payments. Business is all about receipts and payments. दो तरह की receipt, capital receipt, revenue receipt. Revenue receipt is because of exchange of service and goods. Capital receipt is because of exchange of asset, यानी यहीं पर माइनस हो जाएगा, और on borrowing. Expense तीन तरह के, revenue expense which is on exchange of सर्विस एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स. आपने सर्विस एक्वायर किया, पे किया, तो रेवेन्यू एक्सपेंस. आपने गुड्स एक्वायर किया, पे किया, रेवेन्यू एक्सपेंस. आपने असेट एक्वायर, पे किया, कैपिटल एक्सपेंस. और आपने पे किया, आपको लग रहा है कि उसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा का है, मगर ऐसा कुछ है नहीं. इट डजंट हैव रियलाइजेबल वैल्यू, तो फिक्टिशियस असेट, और यू कैन से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस. तो ये सारी चीजें इस बोर्ड पर आ गई. बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिसका भी था. Once again, I don't want to know the name because I want to feel that all my 600 students are as brilliant as you are, and their thought process is going as good as your thought process is going. So keep it up and stay blessed. I'll say जिसने भी ये सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा, and hopefully this is making sense to everyone. आगे बढ़ते हैं. Sir, I have doubt. Goods distributed as sample is which type of account? I think आपकी स्कूल शुरू हो चुकी है, क्योंकि आप थोड़े ये अकाउंट की बात मैंने कभी की ही नहीं है. क्यों नहीं की है? इंटेंशनली. अब मैं करूंगा, अब ठीक है. अब यानी कल के सेशन से जो एक्सरसाइज शुरू होगी उसमें बात होगी, मगर चलो आपने पूछ लिया तो बता देता हूँ. व्हेन आई से गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, यानी से फॉर एग्जांपल आई डील इन पेन्स, देन दिस आर माय गुड्स. 3 पेन है, सुनना. 2 पेन मैंने बेची, तो ये हो गया सेल्स. एक पेन आई जस्ट ऑब्जर्व कि मेरे दुकान के बाहर एक गरीब का बच्चा है, ठीक है. मान लो मेरे पास 4 पेन है, 2 पेन मैंने बेच दी, तो ये हो गए सेल्स. मेरे दुकान के बाहर एक गरीब का बच्चा बैठा है, एंड ही इज लाइक सिटिंग विद अ बुक, एंड आई सॉ क्यूरियोसिटी इन हिम के यार इसे पढ़ना है, मगर पढ़ने के लिए लिखना पड़ेगा. अब लिखने के लिए उसे पेन चाहिए, उसके पास पेन नहीं है. तो मैं सीधा गया, मैंने उसको ये पेन दे दिया. गुड्स मैंने दिए, सामने पैसा नहीं लिया, तो इसको कहेंगे गुड्स गिवन एज डोनेशन. इसे कहेंगे सेल्स, इसे कहेंगे गुड्स गिवन एज डोनेशन. ये पेन से फॉर एग्जांपल मैं स्कूल में गया, एंड आई वांट स्कूल पीपल टू यूज ओनली माय पेन, एंड आई वांट स्कूल टू प्रमोट दैट दे शुड दैट किड्स शुड यूज माय पेन. सो आई वेंट टू स्कूल, और मैंने मैडम को, मैडम एक काम करो, ये पेन आप यूज तो करो, एक बार यूज करो, आपको फिर मेरी ही पेन अच्छी लगेगी. मैडम बोला बट व्हाई शुड आई यूज इट, मैं ऑलरेडी दूसरी पेन यूज. अरे मैडम फ्री में है, रखो. मैडम ने रख लिया, ये बेचा, इसे कहा सेल्स. ये आई गिव इट एज डोनेशन, इसे कहूंगा गुड्स गिवन एज डोनेशन. ये एज अ फ्री सैंपल दिया ताकि मैडम यूज करे, मैडम को पसंद आए, फिर मैडम तो मेरे पास से ले, मगर वो प्रमोट करे अपने बच्चों को कि पेन लेनी है तो सिर्फ ये वाली. दिस इज गुड्स गिवन एज सैंपल. अ पॉइंट इज वेदर इट इज गुड्स गिवन एज सैंपल, वेदर इट इज गुड्स गिवन एज डोनेशन, or whether it is sales. In all 3 situations, I am talking about goods. And when I talk about goods, there it ends. Period. Real main head, or you can say the main head. Yeah, that's what we say, main head. And this is your subhead, goods. Goods given as free sample, or goods given as donation, or sales. They all basically talk about goods. Hope things are clear. आपकी स्कूल में अगर कोई अलग आंसर मिलता है आपको, तो प्लीज कॉल मी, आई विल प्रूव यू रॉन्ग, आई विल प्रूव द अथॉरिटी रॉन्ग. आगे बढ़ते हैं. सर, एज इंश्योरेंस कंपनी बीइंग पर्सनल अकाउंट हैज 2 मेन हेड्स, assets and liabilities. It is always it always takes insurance premium in advance. So can't we write it subhead as asset and subhead as current asset? See, insurance company becomes your, yes, it is taking insurance premium in advance,
तो यस इट इज इंश्योरेंस कंपनी विच बिकम्स आवर असेट, मैंने उनको पैसा दे दिया, उनसे सर्विस मिलना बाकी है, बट आई आइडेंटिफाई बिकॉज आई मे नॉट टेक इंश्योरेंस फॉर वन प्रोडक्ट। मेरा अगर बिजनेस है तो बेंचेस का भी इंश्योरेंस है, एसी का भी इंश्योरेंस है, बिल्डिंग का भी इंश्योरेंस है, ठीक है, हमारा खुद का भी इंश्योरेंस है, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ज्यादा बात नहीं करूंगा, मरविन सर बात करेंगे, ही इज डीलिंग विद बिजनेस स्टडीज। तो ये सारे इंश्योरेंस है हमारे, एंड इट इज नॉट नेसेसरी हर एक इंश्योरेंस हमने एक ही कंपनी से लिए है, इन सबको हमने प्रीमियम एडवांस में भरा है प्रीपेड कंसेप्ट से। तो इन सबसे सबको पैसा दे दिया है, बेनिफिट लेना बाकी है, तो इतने सारे नाम लिखने के बजाय मैं एक नाम लिखूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस, विच विल इंक्लूड ऑल इंश्योरेंस कंपनी। So I don't identify premium paid in advance as insurance company, I identify as prepaid insurance, which represents insurance company. And yes, in that thought process, you are going absolutely right. It is personal, it is asset, it is current asset. But when I say insurance company in business, now it is not for premium, but it is for the claim. अगर मेरी benches मान लो जल गई, आग लगा जल गई, तो क्योंकि मैंने इतने सालों से प्रीमियम भरा है, तो अब अगर बेंचेस जलती है तो नुकसान हुआ, वो नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तो आंसर इज इंश्योरेंस कंपनी। अगर 31 मार्च को उन्होंने बोला कि यस मिस्टर सोम मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूंगा, अगर दे दिए तो खत्म कैश ट्रांजैक्शन, मगर अगर नहीं दिया तो उस इंश्योरेंस कंपनी से मुझे 5 लाख लेने के बाकी है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी मेरा बन जाएगा, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, रिसीवेबल, मुझे उससे पैसा लेना बाकी है। तो उस एंगल से इंश्योरेंस कंपनी यस पर्सनल, उससे पैसा लेना बाकी असेट, और यस करंट असेट, यानी आपका आइडेंटिफिकेशन सही था, बट नॉट फॉर प्रीमियम, बट इट विल बी फॉर क्लेम, दैट यू विल सी इंश्योरेंस कंपनी। सो व्हेन यू सी इंश्योरेंस कंपनी इन एनी बिजनेस एज एन अकाउंट अफेक्टिंग बिजनेस, रिमेंबर इट इज नॉट फॉर द प्रीमियम, पक्का उस कंपनी में कुछ नुकसान हुआ होगा और उस नुकसान का क्लेम एक्सेप्ट किया है, मगर इंश्योरेंस कंपनी ने अभी तक पैसा नहीं दिया, एंड दैट्स वेयर यू आर सीइंग इंश्योरेंस कंपनी एज योर असेट इन योर बुक्स। होप थिंग्स आर क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सर आई हैव अ डाउट अबाउट 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सो इट कुड बी अ पर्सनल अकाउंट एज वी कैन स्यू इट एंड इट कैन ऑल्सो स्यू अस। नहीं, आप दो अलग चीजें बात कर रहे हो। 8% government bond is not government. Government has different sectors to look after. Schools खोलने हैं, हॉस्पिटल खोलनी है, यूनिवर्सिटीज खोलनी है, रोड बनाने हैं, बिल्डिंग बनानी है, फैक्ट्रीज ओपन अप करनी है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, मंदिर बनाना है, बहुत सारी चीजें हैं। अब इतने पैसे तो है नहीं गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट विल कम अप विद डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान्स कि आप हमारे रोड वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो, हम रोड बनाएंगे, उसमें से जो हम कमाएंगे आपको उसमें से पैसा मिलेगा, नहीं कमाए तो भी हम देंगे, मगर हमें फिलहाल पैसे की जरूरत है, तो हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमें इन्वेस्ट करो, विल गिव यू सम रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। Now that can be for road building, that can be for say for example school building, that can be for say for example nuclear station building, anything, and that investment will be in the form of different names, 8% government bonds, or maybe 12% government certificates, or maybe Kisan Vikas Patra, maybe Indira Vikas Patra, maybe now Narendra Vikas Patra, ऐसा कोई विकास पत्र होगा गवर्नमेंट का। These are all investment schemes of government. You acquire them, आप पे करोगे 5 लाख और आपको वो इन्वेस्टमेंट आपका ओनरशिप हो जाएगा। होप दैट है 3 साल के बाद आपको वो वापस देने का गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा दे देगा। सो इट्स अ, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, योर प्रॉपर्टी है आपका, आपने एक्वायर किया है 1 साल 2 साल 3 साल, whatever is the tenure, within that tenure you exchange it and you get your money back along with interest. So that is what 8% government bond is. So it is not government. That's where your thought process. आपको लग रहा है 8% government bond, government नाम है ना इसलिए ये government है, नहीं, government नहीं है। I cannot sue those bonds. Yes, government has guarantee for those bonds कि अगर हम पैसा पे नहीं कर पाए तो हम खड़े हैं भैया, हम खड़े हैं। वो तो हर एक इन्वेस्टमेंट में I can sue anyone। मैंने अगर रिलायंस में भी पैसा डाला, अगर रिलायंस कल हाथ ऊपर कर देता है, I can sue them कि बॉस मेरा पैसा दे दो।
तू साला रोल्स रॉय में घूम रहा है, तेरा बेटा रोल्स रॉय में घूम रहा है, साला हाथी था उसमें से इंसान बन गया, इतना खर्चा किया तुमने उस पर, मेरा पैसा लगा था, आई कैन sue them. I can sue them. But still, I can sue the people in whose company it was invested. But that investment is something which I bought. I bought. Hope that is clear. And that's why it becomes my property. And that's why it's my asset. आगे बढ़ते हैं. Sir, my doubt is that I don't understand the advertisement expense and advertisement suspense. Other than this loan advance, I don't understand. Advertisement expense, advertisement suspense. I need to go in black and white, boss. Black and white era में जाना पड़ेगा. Advertisement expense, पैसा दिया, किसी ने अपने प्लेटफॉर्म पर मेरा प्रोडक्ट दिखाया, सोहम क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, which is a service to me, and I got the benefit over story. It's an expense, revenue expense, benefit is exhausted. मगर मैंने इतना सारा एडवर्टीजमेंट किया, बॉस इस पर तो पूरा सेशन लिया था मैंने. हाउ कैन यू आस्क दिस क्वेश्चन टू मी? पूरा एक सेशन ओनली टू एक्सप्लेन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस? कम ऑन यार, यू कैन आस्क मी सच क्वेश्चंस. थोड़ा काम करके आओ यार, ऐसे ही बीच में से मत आ जाओ. वो सिंपल. आई हैव टेकन अ होल सेशन एंड इफ एट ऑल यू हैव जॉइन्ड इन बिटवीन, तो उस सेशन के बाद उसका डाउट सेशन है. वो डाउट सेशन देखो, आप सीधा जंप मत मारो. आई एम श्योर ये जिसने पूछा है वो बीच में से ज्वाइन है, उसके थोड़े पास्ट वाले लेक्चर्स चल रहे हैं, तो आप इसमें मत घुसो. आपके लिए डाउट सेशन बीच में हो गया है. दिस इज डाउट सेशन नंबर 8. इफ यू हैव स्किप्ड 6, 4, 5, 6, 7 and if you directly join 8, not done. Go to 6, go to 5, go to 7, go to 4 and then come to 6, rather 8. आप लेट हो, मैं लेट नहीं हूं. Hope things are clear. Hope things are clear. आगे के सेशन में थोड़ा सर्च मारो, जहां अपना एक्सपेंस खत्म हो रहा है ना, उसके बाद के डाउट सेशन में ये पूरा डिटेल में बताया गया है, पूरा डिटेल में बताया गया है. सर्च करो, गेट दैट वीडियो and get the answer. Not now. This is not where I am going to discuss that. हाँ, टाइप की बात करोगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस नॉमिनल एक्सपेंस, नथिंग टू डू विद प्रोडक्शन, इनडायरेक्ट एक्सपेंस. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया तो रियल asset, fictitious asset. That's the classification, and that's where we are. So I'll only talk about that. Our expense and expenditure, two different terms. Once again, in common parlance, बिजनेस में हम कभी एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस ऐसा कुछ यूज नहीं करते. टेक्स्ट बुक में यस, एक्सपेंस यानी रेवेन्यू होता है, और एक्सपेंडिचर यानी जो एक साल से ज्यादा के लिए पे किया होता है ना, उसमें हम एक्सपेंडिचर यूज करते हैं. ये बात भी शायद मैंने पहले बता दी है, किसी ने ये रिपीट में पूछा है. एनीवेज, बता दिया आंसर. सर, वुड कैश डिस्काउंट बी ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट? यस, डेफिनेटली. कैश डिस्काउंट इज, अगर आई एम अ सेलर, यू आर अ बायर, देन आई अलाउ यू डिस्काउंट, तो मेरे लिए, मुझे उतना पैसा कम मिलेगा, तो मेरे लिए डिस्काउंट अलाउड लॉस हो जाएगा, नॉमिनल और लॉस. अगर आप आपके एंगल से देखें तो आपने पे उतना कम किया, आपको गेन हुआ, गेन यहां पर आया, नॉमिनल एंड गेन. डिस्काउंट रिसीव्ड इज गेन, डिस्काउंट अलाउड इज योर लॉस. सर, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस इज अ ब्रिज. इट्स अ ब्रिज. जैसे एक नदी जा रही है, उसका एक तट यहाँ पर है बैंक, दूसरा बैंक यहाँ पर है, बीच में नदी जा रही है, तो दोनों को मिलाने के लिए कैसा एक ब्रिज बनता है. वैसे ही अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, समझ लो. उसका वन पार्ट इज ओवर हियर विच इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन विच यू डू 365 डेज, जिसमें जर्नल एंट्रीज, सब्सिडरी बुक, या तो जर्नल या सब्सिडरी बुक, उसके बाद लेजर बनता है, रिकॉर्डिंग हो गया. अब ये रिकॉर्ड जो किया है उसको दूसरे साइड, दूसरा प्रोसेस खत्म करना है, दैट इज एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड मेकिंग समरी ऑफ इट. मगर वो करने से पहले ये ब्रिज बनाएंगे हम, जिसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं. ये ब्रिज बनाकर हम ये चेक करेंगे कि जो हमने रिकॉर्ड किया है वो एरिथमेटिकली करेक्ट है कि नहीं. होप दैट इज क्लियर. कैसे एरिथमेटिकली करेक्ट देखा जाता है, वो उसके लिए आपको कुछ 15 दिन वेट करना पड़ेगा. बट राइट नाउ ट्रायल बैलेंस इज अ ब्रिज बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. इट चेक्स
arithmetical accuracy of bookkeeping that you have done before you go to the next step, that is accountancy. अभी के लिए सिर्फ इतना. Last question is explain subtypes and subtypes. जिसने भी पूछा, शर्म करो यार, एक ही शब्द है मेरे पास. Anyways, hopefully things are clear. आपके सारे doubts जो इस सेशन के रिलेटेड थे, hopefully it has been covered up, and make sure that things are absolutely clear. From tomorrow we are starting with something new. ठीक है, नई स्किट्स, नया कंसेप्ट, तो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ से अकाउंट्स एक नए लेवल पर हम एलिवेट करने वाले हैं. मगर उसके लिए ये पक्का होना जरूरी है. परचेज दिखा रियल गुड्स, सैलरी दिखा नॉमिनल एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस दिखा नॉमिनल एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस पेएबल दिखा. अच्छा, ये तो रिप्रेजेंट्स द पर्सन जिसको पे करना बाकी है, पर्सनल लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी. एडवर्टीजमेंट, मैंने पैसा दिया, उसने मुझे सर्विस दिया, ये तो खर्चा हुआ मेरा. पेमेंट हुआ, सामने मुझे सर्विस मिला, तो ये हो गया मेरा खर्चा. एक्सपेंस, नथिंग टू डू विद प्रोडक्शन, सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस. ये चीजें ऐसे सामने आनी चाहिए. मेक श्योर कि वो ऐसे सामने आ रही है. अगर नहीं आ रही है, go to all the sessions. Make sure that all your sessions are perfect and clear to you. Keep repeating it. It goes eat, watch the videos, sleep. Eat, watch the videos, sleep. Eat, watch the video, sleep. So it is basically eat, watch the video, sleep, repeat. That should be your work. Go simple. We have worked a lot, so make sure that you are perfect and you're crystal clear with all your concepts. Hope things are clear. Hashtag घर बैठे पढ़ो. Stay home, stay safe. Take utmost care of your mental and physical health. See you all tomorrow. Bye bye. Take care.